Hello, student. Only 40 days left for your ACCFR September 2026 examination, and I'm 100% sure that most of you are going to make this major mistake. The mistake is for the फर्स्ट 20-25 days आप लेक्चर्स देखेंगे, आप रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करेंगे, एंड यस फ्यू क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, एंड लास्ट के 4-5 दिन में एक आध मॉक टेस्ट चलते फिरते आप करेंगे. This order needs to change right now if you really want to pass your FR exam. And trust me, students, with 40 days remaining, you can definitely clear your ACC FR exam, whether you are giving it first time or you are resitting the exam. So let's start this video. Let's understand how we can make this possible. So, ACCA FR 40 days, okay, complete revision, question practice and mock exam plan. This is very, very important video, students, for all of you. Trust me, watch this video till the end. And yes, there is a one surprise package for all of you, जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा. Now, in this video, what all topics I am going to cover? Okay, so I am going to tell you what to revise. आपको क्या revise करना है? When to begin your question practice? How many section C questions you are going to attempt and when to attempt your mock test, very important, and how the plan should change if you are a resit student. So at the end of this video, I will also make a comparison between resit students and the one who are giving the exam first time. Now, 40 days revision practice mock. This is what our target is. But before we see that, let's first understand the FR exam very quickly. There are 3 sections in the FR exam: Section A, Section B, and Section C. 30 marks of objective test question in Section A, 30 marks through case-based objective test question in Section B. So आप देख सकते हैं, there are total 60 marks for objective type questions. Section C, you will get 220-mark constructed response question. So that will basically 40 marks in total. Now, one thing is very important here, which you have to understand. अगर आप सिर्फ सेक्शन ए के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हो, यू आर स्टिल मिसिंग द 40 मार्क्स. और इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर सेक्शन सी, जैसे कि कंसोलिडेशन, इंटरप्रिटेशन, देन अगेन यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी हाई रिस्क. सो स्टूडेंट्स, in this video, I will tell you how you are going to apply your knowledge, how you are going to revise every single chapter, how you are going to apply that knowledge, and how you are going to execute in the exam. Okay, now day one. So like I said, it's a 40-day plan. And yes, again, there is a very important thing which I have to mention. Just wait for a few slides. Day one. The day one is very, very important, especially for the resit students and also for those students who are giving the FR first time. Understand your mistakes. अपनी गलतियों को पहले समझिए. कैसे? Attempt a shorter diagnostic test. Yes, it's a diagnostic test. And trust me, student, if you're not ready to do this on day one, don't watch the video after this. There is no need. Because the entire video, the entire remaining 39 days depends on this diagnostic test. Okay? तो अगर आप research student हैं, तो आप चाहे तो एक छोटा diagnostic test देने के बजाय आप एक full mock test भी दे सकते हो. ठीक है? Now what is this diagnostic test? 30 marks of mixed objective questions. आप कहीं से भी 30 marks के mixed objective questions निकालिए. ओके? एंड एक 20 marks section C का क्वेश्चन, चाहे वो इंटरप्रिटेशन का हो, चाहे सिंगल एंटिटी, चाहे कंसोलिडेशन, एंड गिव योरसेल्फ 90 minutes एंड सॉल्व दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट. Very important. Why it is important? What's going to happen once you give this exam? Understand. Once you give this diagnostic test, you will be able to understand what are your conceptual gaps. आपके कहां पे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, कहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको जरूरत है, सेक्शन सी में कौन से चैप्टर में आप बेहतर नहीं है. अब प्रॉब्लम यह है कि सर कैसे बनाऊं, क्या स्ट्रक्चर रखूं. सो हियर कम्स अ सरप्राइज. I have already prepared for all of you a 40 days revision tracker, जो इस वीडियो के एंड के बाद मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ट्रैकर. तो आप देख सकते हैं डे वन डायग्नोस्टिक डे. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे कि आपको एक फुल 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, सजेस्टेड 180 मिनट्स. एंड इफ यू आर अ
फ्रेश स्टूडेंट तो आपको सिर्फ ये 30 मार्क्स और एक 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में कितना स्कोर आया 30 में से, सेक्शन सी में कितना स्कोर आया, फुल मार्क्स दिया तो उसमें कितना स्कोर आया, एंड इनिशियल डायग्नोसिस। ठीक है, कौन सा एरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लगता है जो आपका बहुत वीक है। ठीक है, मार्क योर मेन वीकनेस। ठीक है, सिंगल एंटिटी स्टेटमेंट वीक है, बहुत अच्छा है, क्या है। सो दिस इज जस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट ट्रैकर। वंस यू गेट दैट 40 days रिवीजन ट्रैकर, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसे कैसे देखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डे 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्टार्ट सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस एंड गिव इट इन 90 minutes। डे 2 से लेके डे 10 तक रिपेयर दी कोर। रिपेयर दी कोर का मतलब है, जब आप डे 1 में अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे, आप उसको इनिशियली डायग्नोसिस करेंगे मेरे ट्रैकर को यूज करके, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें आप वीक हैं। सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सही हैं, वीक हैं, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो प्लेटफॉर्म है आप वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। सेम गोज विद ग्रुप अकाउंट्स कंसोलिडेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेसिकली ध्यान सुनिएगा, डे 2 से 10 तक इन 9 days में आपको अपने उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है जो आपको अच्छे से नहीं आते, और ये डेटा आपको मिलेगा डे 1 के इनिशियल डायग्नोसिस रिपोर्ट से जो इस ट्रैकर के अंदर मौजूद है। ओके, नाउ डोंट वरी इन द ट्रैकर, दिस ट्रैकर इज वंडरफुल ट्रैकर। इस ट्रैकर के अंदर आप देख सकते हैं डे 2, डे 3, डे 4, हर एक डे पे आपको क्या करना है, मैंने वो तक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वीक एरियाज, दैट्स टोटली फाइन। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डे 2 इन टॉपिक्स पे आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है बहुत जल्दी, और 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन करने हैं, तो 2 से 3 घंटे आपको सिटिंग देनी पड़ेगी। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको अपना स्कोर देना है कि 20 में से कितना है, और आपको बताना है आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब है आर, आर का मतलब है रेड, मतलब ये टॉपिक्स आपके वीक हैं। ए फॉर एम्बर, एम्बर कलर, इसका मतलब ये है कि आपके टॉपिक्स ठीक ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है, जी मींस ग्रीन्स, इट मींस योर टॉपिक्स आर परफेक्ट, यू डोंट हैव टू लुक देम अगेन, और फिर यहां पे टिक करिए डन कि हाँ मैंने डे 2 का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यही फॉलो करना है, यू कैन चेंज इट, बट यस ट्रैकर इज देयर। ओके, चलिए, तो ये था आपका डे 2 से लेके डे 10 तक की कहानी जो आपको करना है। तो देखिए डे 2 से 10 पे आपके वीक एरियाज आप रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, वीक एरियाज आप रिवाइज कर रहे हैं along with क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दिस 40 days प्लान डजंट इंक्लूड कि आपको कुछ क्वेश्चन, आपको सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने नहीं, यू हैव टू रिवाइज एंड along with that you have to practice also। नाउ व्हाट वुड हैपन सर, जब मैं रिवीजन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मुझे मेरी गलतियां पता लगेंगी। तो स्टूडेंट्स, इन दिस 90 days ट्रैकर देर इज अ 40 day एरर लॉग। आपको एक एरर लॉग मिलेगा जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रैकर। हर एक स्टूडेंट को एक डायरी बनानी चाहिए, कहीं पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी सारी गलतियां लिखे, और मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ डेट डाली, टॉपिक या क्वेश्चन का नाम लिखा, ठीक है, जिसमें आपने गलती करी है, मिस्टेक मेड, आपने क्या गलती करी है, करेक्ट रूल और अप्रोच, सही तरीका क्या था, री अटेम्प्ट डेट, आपने उस क्वेश्चन को दोबारा कब किया, एंड री अटेम्प्ट रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया। This is the error log, and trust me student on this, based on my experience, if you are maintaining this not just in FR paper but any other exam, this will make a big impact on your results। Okay, now आते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, डे 11 से डे 22 मेक क्वेश्चन प्रैक्टिस दी प्रायोरिटी। ठीक है, यहां पे द वर्ड इज प्रायोरिटी। ओके, डे 11 देखिए, डे इसके पहले जो हमने डेज देखे उसमें भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था, रिवीजन के साथ था। डे 11 to 22 इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रायोरिटी। यहां पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको क्वेश्चन की मार्किंग करनी है, फटाफट आपको उसे डायग्नोस करना है कि आपने क्या गलती करी, और फिर से उसे री अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। एंड अगेन द बेस्ट थिंग इन द ट्रैकर, ये भी आपको दिया हुआ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल डे 11 को आप नॉन करेंट एसेट्स, इंपेयरमेंट और इन्वेंट्रीज करेंगे, यानी कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नॉट रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, आपको 30 मार्क्स ऑफ मिक्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन को टारगेट करना है, 30 मार्क्स के, खुद को स्कोर देना है। री अटेम्प्ट की जरूरत है या नहीं है बेस्ड ऑन स्कोर, वो आप डिसाइड करेंगे,
और फिर उसके बाद करेंगे डन। तो एक चीज समझिए, सी दिस इज फॉर ऑल द 22 days, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स, वो है री अटेम्प्ट। ये नहीं कि आपने किया, मार्किंग कर दी, क्वेश्चन गलत हो गया, गलती समझ ली, लेकिन आपने दोबारा अटेम्प्ट ही नहीं किया, सारी मेहनत आपकी वेस्ट। तो री अटेम्प्ट जरूर करिएगा एंड यूज दिस ट्रैकर। आते हैं डे 23 से लेके डे 30 के बीच में। यहां पे हम फोकस करेंगे 40 मार्क्स के लिए, यानी कि सेक्शन सी। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो आपका डे 11 टू 22 है, यहां भी सेक्शन सी के मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। बट डे 23 टू 30 ओनली फोकस ऑन सेक्शन सी, 40 मार्क्स। सिंगल एंटिटी प्रिपरेशन क्वेश्चन, ग्रुप अकाउंट क्वेश्चन, दैट्स कंसोलिडेशन, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन कंबाइनिंग डिफरेंट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, जिसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको वो क्वेश्चन भी यहां पर करने हैं सर। यस, इसका भी ट्रैकर है। ओके, आप देख सकते हैं, दिस इज फेज 4 मास्टर सेक्शन सी, डे 23 से लेके डे 30 तक। सेक्शन सी रूल, आपको ये रूल है, ये भी आपको पढ़ने हैं जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल डे 23 सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट वन फुल 20 मार्क क्वेश्चन, गिव योर सेल्फ स्कोरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से चेक करना है, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। आपको कितना टाइम लगा आपको लिखना है, और स्टैंडर्ड टाइम मैंने यहां मेंशन किया हुआ है 36 मिनट्स 20 मार्क्स के लिए। तो आपको कितना टाइम लगा आप यहां पे लिखिए और फिर डन करिए कि हाँ आज का हो गया, फिर अगले दिन पे करिए। ओके, चलिए। तो आई होप डे 23 से 30 में हमारा फोकस क्या आपको समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट के 31 टू 38 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन मॉक टेस्ट। नाउ मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो लास्ट के 2 या 3 दिन जब बचते हैं एग्जाम को, तो एक मॉक टेस्ट उठाते हैं, सॉरी, एक मॉक टेस्ट उठाते हैं और घूमते फिरते चलते फिरते एक क्वेश्चन किया, आधा क्वेश्चन किया, पानी पी लिया, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर, नहीं। मॉक टेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। फुल मॉक एंड डीप रिव्यू, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। डे 31 पे आप देंगे एक फुल मॉक टेस्ट, इसके साथ अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना रिवीजन जो अपने हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं। डे 32 पे आप अपने मॉक 1 को रिव्यू करेंगे, तो सेम डे पे रिव्यू मत करना, अगले दिन रिव्यू करना। डिटेल्ड रिव्यू, टेक 2 आवर्स 3 आवर्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहां मिस्टेक करी है, मैं कैसे उसे ठीक कर सकता हूं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, इट विल इंक्रीज योर मार्क्स। ये जो डे 31 से 38 में आप करने वाले ना, ये आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकता है। डे 33 रिपेयर वीक एरियाज, मॉक 1 देंगे, मॉक 1 को अच्छे से डिटेल में रिव्यू करेंगे, फाइंड आउट योर वीक एरियाज। डे 33 में अपने वीक एरियाज को रिवाइज करिए। सो सी व्हाट यू आर डूइंग इन दिस 31 टू 30 डेज, आप एक मॉक दे रहे हैं, मॉक आपको आपकी गलतियां बता रहा है और आप उन गलतियों को नेक्स्ट डे ठीक कर रहे हैं। सेम डे ठीक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। डे 34 फुल मॉक 2 एंड रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पे मैंने कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं फॉर अटेम्प्टिंग द ईच मॉक पेपर अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, क्विकली विल गो थ्रू इट। ठीक है, 3 uninterrupted hours sit in the exam condition. If you can't sit in the exam condition, don't give the mock। मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं आपको ये करने की, अगर आप एग्जाम कंडीशंस में नहीं बैठ सकते फॉर अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लाइक एसीसीए। ठीक है, कोई नोट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, कोई टाइमर पॉज नहीं करेंगे आप, आंसर बिल्कुल चेक नहीं करेंगे एग्जाम के दौरान, एंड एसीसीए का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ही यूज करेंगे आप। मैंने यहां लिखा है सिमिलर कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट, बट इग्नोर इट, आपको एसीसीए का प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ही यूज करना है अपने मॉक टेस्ट के लिए। अ मॉक इज नॉट ओनली ए टेस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नहीं, मॉक ये टेस्ट करता है कि क्या आप उन 3 घंटे में एग्जामिनेशन कंडीशन में क्लियरली सोच सकते हो, क्या आप कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकते हो, क्या आप रिकवर कर सकते हो आफ्टर डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड कीप मूविंग, एंड दिस इज व्हाट यू एक्चुअली फेस इन द एग्जाम। आई एम आस्किंग यू, फेस दिस बिफोर द एग्जाम सो दैट यू डोंट हैव टू फेस इट इन द एग्जाम। गॉट इट? ठीक है, एंड अगेन यस, ट्रैकर के अंदर आपको आपका मॉक से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट मैंने दिया है, हर एक मॉक के लिए मैंने कंटेंट दिया है, वो यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं है, तो कितने कितने मार्क्स आए वो सब कुछ वहां मिलेगा आपको। एंड मॉक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, दिस इज द डैशबोर्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 मॉक दिए,
सेक्शन ए में कितने मार्क्स आए, सेक्शन बी में कितने मार्क्स आए, सेक्शन सी के क्वेश्चन वन में कितने मार्क्स आए, सेक्शन सी के क्वेश्चन टू में कितने मार्क्स आए, मॉक वन के टोटल, मॉक टू का टोटल, मॉक थ्री के टोटल मार्क्स, मार्क्स लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किए, क्वेश्चन उनके मार्क्स क्या थे, एंड कितने समय में आपने मॉक कंप्लीट किया। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, दिस विल हेल्प यू। जब हमारी गलतियां हमारे सामने होती है ना, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको रिकवर रिपेयर करने में लग जाता है, ठीक है। एंड मॉक स्कोर, सो मैनी देयर वेरियस, अभी मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए ट्रैकर के, वो तो सिर्फ एक ग्लिम्स है उस ट्रैकर का। ओके, नाउ let's come to the last 2 days, students. Day 39 and day 40. Okay, consolidate, do not panic, because 40th day पे तो आपका एग्जाम होगा। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को शायद 2 या 4 दिन बाद देखेंगे, आपको ही बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 40 डेज का है तो अगर सर मेरे तो 40 डेज से कम टाइम बचा, मैं क्या करूं। आप उतने डेज के हिसाब से ट्रैकर रख सकते हो, ठीक है। सो यस, डेज 39 एंड डे 40 पे आपको क्या करना है। डे 39 वेरी इंपॉर्टेंट डे, रिव्यू। सर क्या रिव्यू करूं, एरर लॉग। वो जो एरर लॉग मैंने आपको दिखाया था स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरर लॉग हर चीज के लिए है, ठीक है। डे 2 से 10 में जब आप अपना रिपेयर कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसके लिए है एरर लॉग। डे 11 से 22 में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो यहां पे तो गलतियां करोगे, उसके लिए भी है वो एरर लॉग। उसमें लिखो कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। डे 23 से 30 में जब आप सेक्शन सी कर रहे होगे, तो उसमें भी गलतियां करोगे, एरर लॉग उसके लिए भी है। वो एरर लॉग इज कंप्लीट, जहां जहां गलतियां हो रही है कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का नाम लिखो एंड राइट व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड, और ये भी लिखो कि आपने उसको ठीक किया कि नहीं किया। सो ऑन डे 39 स्टूडेंट, योर एरर लॉग, आपको इसको रिव्यू करना है। अगर आप इसको रिव्यू नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स एंड वर्किंग्स गो थ्रू करनी है, जैसे कि कंसोलिडेशन की जो वर्किंग्स होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपको देखने हैं, रेशियो इंटरप्रिटेशन का क्या स्ट्रक्चर है वो देखना है, एंड द मिस्टेक्स दैट अपीयर रिपीटेडली इन योर मॉक्स, आपके मॉक्स में कौन सी गलतियां हैं जो बार बार रिपीट कर रहे थे, आपको उसे भी रिव्यू करना है। डे 40, लास्ट डे, रिव्यू योर शॉर्ट नोट्स, कीप वर्किंग्स एंड एरर लॉग। लास्ट डे पे एरर लॉग भी आपको रिव्यू करना है, और जो भी आपके पास नोट्स हैं, जहां से भी आपके पास नोट्स हैं, आपको उनको रिव्यू करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना या टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना। एंड यस, फॉर सेक्शन सी की वर्किंग नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हमारा डे 40 का जो टारगेट था खत्म हो गया, और मैंने जो आपको दिखाया है गाइज, ये जो ट्रैकर है, दिस इज वेरी डिटेल ट्रैकर। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ट्रैकर को एक्सेस कर सकते हैं, एंड इट्स टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और ये ट्रैकर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है नाउ, बट कुछ चेंजेस के साथ। नाउ न्यू स्टूडेंट्स वर्सेस रीसिट स्टूडेंट। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है एफआर का, मे बी शायद एसीसी का पहला अटेम्प्ट है, ओके, मोर कॉन्सेप्ट रिपेयर टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज। वो जो फर्स्ट 10 डेज थे, अगर आपको याद हो, पहले दिन में डायग्नोस्टिक, 2 से 10 दिन में हमने अपना जो कोर रिपेयर कर रहे थे हम लोग बेसिकली, तो हम रिवाइज भी कर रहे थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी। अगर आप नए स्टूडेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि आप कंसेप्ट रिपेयर में ज्यादा समय देना। एंड गाइस, ट्रैकर के अंदर मैंने टाइम भी लिखा है कि कितना परसेंट टाइम किस एक्टिविटी में जाएगा, रिवीजन में और आपके प्रैक्टिस में। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट्स है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो फर्स्ट 9 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर आप कॉन्सेप्ट रिपेयर को ज्यादा टाइम देंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम। स्टार्ट क्वेश्चन इमीडिएटली, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन 10 दिन बाद, क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है। ओके, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टाइनी डिटेल इन द कंसेप्ट बिफोर अटेम्प्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस आई यूज टू डू, कि सर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए ना फिर क्वेश्चन करूंगा, नहीं। स्टार्ट क्वेश्चन, वाई पता है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन आपको बताएगा कि तुमको ये नहीं आता है, तो तुमको ये पता चलेगा, अच्छा मुझे अब ये पढ़ना है। सो क्वेश्चन विल रिवील विच डिटेल्स एक्चुअली रिक्वायर मोर वर्क। ओके, सो डोंट वेट टू गेट मास्टरी इन द कॉन्सेप्ट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, सो दिस इज फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट। रीसिट स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, डू नॉट अज्यूम दैट फेलिंग वंस मीन्स यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग अगेन। देखो, आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं या मे बी थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको वापस से पूरा पढ़ना है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और मैं भी यही फॉलो करता था। मुझे भी लगता था कि हाँ, दोबारा दोबारा दे, पूरा नहीं पढ़ना है। ऑन डे वन, आइडेंटिफाई वेदर योर प्रीवियस प्रॉब्लम वॉज। जब आप डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे, तो आप थोड़ा अच्छे से डायग्नोस करो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी पहले। क्या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, सेक्शन सी में टेक्निक नहीं आती,
क्वेश्चन प्रैक्टिस इनसफिशिएंट है आपकी, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, या रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर या एक से ज्यादा टॉपिक में, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। आप जब तक इस पे नहीं काम करेंगे रीसीट स्टूडेंट, आपका पास होना बहुत मुश्किल है। अच्छे मार्क्स तो भूल जाइए। फाइंड आउट योर मिस्टेक, सिट ऑन डे वन, पूरा दिन लगाओ सिर्फ डायग्नोस करने में। ट्रैकर में एवरीथिंग मैंने दिया हुआ है। इनफैक्ट डे वन में जो डायग्नोस्टिक वाला है उसके लिए भी ट्रैकर है उसी में, ठीक है। So repeating exactly the same preparation method for longer is not automatically a better strategy, student. आप एक ही मेथड को बार बार फॉलो करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे वो मेथड बेटर हो जाएगा। यू हैव टू मेक अ चेंज। ओके, सो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में मैं आपको जो हमारा ट्रैकर है उसका भी एक ग्लिम्स दिखाऊंगा अच्छे से। 3 नॉन नेगोशिएबल फॉर द नेक्स्ट 40 डेज, अगले 40 दिन में ये 3 चीजें आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरी डे, हर दिन आपके हाथों से क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। मेंटेन एंड रिवाइज एरर लॉग, एरर लॉग बनाओ और एरर लॉग को डेली रिवाइज करो। अटेम्प्ट फुल मार्क्स अंडर टाइम्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडीशन। ये 3 नॉन नेगोशिएबल हैं। तो सर इसका मतलब बाकी को हम में ऊपर नीचे कर सकते हैं? यस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टॉपिक्स यू वांट टू रिवाइज, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग होता है। बट दीज 3 थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल, स्टूडेंट्स। Yes. So, student, one more thing, like I also told you in the earlier video, that we have already started our financial reporting revision batch. Okay, it's a very good batch जहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करवाए जाएंगे एफआर सब्जेक्ट के, along with क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड यस द मॉक टेस्ट एंड चेकिंग फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप हमारी वेबसाइट nishankatosh.com पे जा सकते हैं और रिवीजन बैच को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से हमें कनेक्ट करना है एनके लर्निंग को, तो यू कैन सिंपली स्कैन दिस एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, एंड हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिस पे टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उसके लिए आप इसे स्कैन करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, और जो भी लेटेस्ट एसीसीए में चीजें आ रही हैं, एग्जाम आने वाले हैं तो स्पेशल टिप्स भी है, वो सब कुछ इस चैनल के अंदर आपको मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो ट्रैकर है उस ट्रैकर का छोटा सा एक ग्लिम्स। सो दिस इज द ट्रैकर, एंड थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आप ट्रैकर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। So yeah, September 2026 exam preparation ACCFR 40-day revision tracker. Okay, so you can see it's a 14-page PDF, students. Okay, तो यहाँ पे आपका नाम, आप कौन सी एग्जाम सीटिंग, ये सब आप ही को भरना है, हमें कुछ नहीं, हम आपको ट्रैकर देंगे, आप भरिए, आपको बहुत हेल्प होगी। 40 दिन का आपका गोल क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। ट्रैकर को कैसे यूज करना है वो भी मैंने मेंशन किया है। और रेड, एम्बर और ग्रीन कलर का क्या मतलब है वो देख लीजिए। फेस वन में, जैसा कि मैंने कहा था, डायग्नोस योर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो डे वन डायग्नोस्टिक डे है आपका। तो यहाँ पे आपको वो पेपर देना है एक, है ना, और जो भी उसके स्कोरिंग आ रहे हैं, आपका क्या डायग्नोसिस है, वीक एरियाज क्या है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, और डे वन कंप्लीट करके टिक करो। इसी तरह से डे टू का पूरा डिटेल्स है, डे थ्री की डिटेल्स है। सॉरी, जो भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, मॉक मिस्टेक एनालिसिस इज देयर। आपकी कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है मॉक्स में, नॉलेज गैप कितना था मॉक 1 2 3 में, इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज देयर। आपको सिर्फ थोड़ा सा, जब ये ट्रैकर डाउनलोड करोगे ना, आई विल सजेस्ट कि हाफ एन आवर लगा के अच्छे से इसे गो थ्रू करना। पहले समझ लो ट्रैकर कैसा है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था एनके लर्निंग में जो स्कैनर था, आप उसको स्कैन करके डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये ट्रैकर कैसे यूज किया जाए। So, students, now I'm going to tell you how you can access this tracker. So, basically, इन दिस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको वेबसाइट, सॉरी, ट्रैकर का एक लिंक मिलेगा, आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप सीधे हमारी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, और वहां पे आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, दैट्स इट। ओके, आप जैसे ही वो करेंगे, सबमिट करेंगे फॉर्म, विद इन हाफ एन आवर यू विल गेट दिस ट्रैकर। नहीं मिलता है ट्रैकर तो इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं कि सर मुझे स्कैनर नहीं मिला। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इफ यू रियली वांट टू पास योर एसीसी एफआर एग्जाम इन सितंबर 2026। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।